السلام علیکم پاکستانیوں کی آواز کے ساتھ میں ہوں شبی حسن۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو کرونا کے تازہ ترین اعداد و شمار کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں۔ پاکستان میں کرونا سے مزید 2 افراد جان کی باسی ہار گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 28,909 ہو گئی، جبکہ 625 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ کرونا کے 301 نئے کیسز منظر عام پر آ گئے۔ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں 44,129 افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے۔ اس دوران مثبت کیسز کی شرح 0.68% رہی۔ اور بنو کے علاقے گھڑی شیر احمد میں معمولی تلخ کلامی پر 2 خاندانوں میں تصادم کے دوران 5 افراد قتل اور 2 زخمی ہو گئے۔ مقتولین میں باپ اور 2 بیٹے بھی شامل۔ ایک خاندان کے 4 افراد قتل اور 2 زخمی ہو چکے، جبکہ دوسرے خاندان کا ایک شخص قتل ہوا۔ لاشیں اور زخمی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر کے پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں کہ قومی سلامتی پر غور کے لیے وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ افغان صورتحال اور قومی سلامتی کے دیگر معاملات زیر غور آئیں گے۔ اجلاس میں عسکری قیادت اور وفاقی وزراء سمیت اعلیٰ حکام شریک ہوں گے۔ قومی سلامتی کمیٹی کو تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں قومی سلامتی سے متعلق مختلف امور پر تفصیلی مشاورت کی جائے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کے مطابق اجلاس میں ملک کی تاریخ کی پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی منظوری کے لیے پیش کی جائے گی۔ نواز شریف واپس آنا چاہتے ہیں تو ٹکٹ دینے کو تیار ہوں، کان کھول کر سن لیں، حکومت مدت پوری کرے گی۔ عمران خان آخری وقت تک کرپشن زدہ مافیا کے خلاف کھڑا رہے گا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا 2 ٹوک اعلان۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، شہباز شریف جیسے جھوٹے اور چور کے منہ سے مخالفین کے گریبان پکڑنے کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ شیخ رشید نے آصف زرداری کے خیمے لگانے کے بیان پر کہا، زرداری اور ان کے ٹینٹ اکھڑنے کا وقت آ رہا ہے۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات بالکل ٹھیک ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔ شیخ رشید نے کہا کہ عوام نے چوروں کو پکڑنے کے لیے ووٹ دیے، لیکن ہم اپنے مقاصد میں ناکام رہے۔ نواز شریف صاحب نے آنا ہے تو جناب میں اپنی جیب سے ان کو ٹکٹ آفر کرتا ہوں، آج کراچی آئیں، اور ایک 1 سائیڈڈ ٹکٹ بھی الاؤ بھی کرتا ہوں۔ اتنا سارا ڈرامہ کر کے آپ بیماری کا گئے، اللہ آپ کو صحت دے، اور یقیناً صحت مند ہیں، کیونکہ کسی ڈاکٹر کو تو آپ نے دکھایا ہی نہیں۔ 3 آپ کے خاندان کے لوگ یہاں موجود ہیں، آپ بھی آ جائیں، بسم اللہ کریں۔ آصف زرداری صاحب نے کہا میں لاہور میں ٹینٹ لگانے لگا ہوں۔ آصف زرداری صاحب، آپ کے اور میرے ٹینٹ کے اکھڑنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ یہ آپ جیسے چور ہمارے گریبانوں پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے حضور۔ اس میں ذرا برابر اس کو شک نہیں ہے کہ نواز شریف اور آصف زرداری خاندان ایک کرپٹ، ڈسآنیسٹ، سلگش اور ایکسٹرا ویگنٹ اس ملک کی دولت باہر لے جانے والے، اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ عمران خان جا رہا ہے تو وہ کہیں نہیں جا رہا۔ وہ آخری سانس اور آخری لمحے اور آخری وقت تک اس کرپشن زدہ قیادت کے خلاف لڑائی لڑتا رہے گا۔ نواز شریف ابھی آئے نہیں، حکومت کی ٹلی پہلے ہی بچ چکی ہے۔ عمران خان اور شیخ رشید اب گھبرانا نہیں۔ رانا ثناء اللہ کا جوابی وار، کہتے ہیں کہ نواز شریف کی واپسی کے خوف سے حکمرانوں کی نیندیں اڑ گئیں، نالائق اور نااہل ٹولے کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ شیخ رشید کے بیان سے ثابت ہو گیا کہ حکومت گھبرا گئی ہے۔ جن کا اپنا ٹکٹ عوام کاٹ چکے، وہ اپنی ٹکٹ کی فکر کریں۔ عمران نیازی نے گھبراہٹ میں پارٹی آئین ہی ختم کر دیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی کی خبروں پر حکومتی کیمپ میں کھلبلی مچ گئی۔ فواد چودھری نے شریف فیملی کو سسیلین مافیا کہہ ڈالا۔ وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب نے کہا کہ بیان حلفی نواز شریف نے عدلیہ پر حملہ کرنے کے لیے تحریر کرایا۔ مشیر احتساب شہزاد اکبر نے کہا کہ شریف خاندان نے عدلیہ پر حملہ کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی کارروائی میں رکاوٹ ڈالی۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ صحافی کو قابل اعتراض حلف نامہ کس نے دیا؟ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے شریف فیملی کو ایک بار پھر سسیلین مافیا کہہ دیا۔ کہا، رانا شمیم نے جج صاحبان کے خلاف حلف نامہ نواز شریف کے دفتر میں ان کے سامنے نوٹرائز کرایا۔ ایک بار پھر ثابت ہو گیا یہ لوگ مافیا کی طرح عدالتوں اور اداروں کو بلیک میل کرتے ہیں۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کہتے ہیں، بڑا انکشاف ہے، بیان حلفی نواز شریف نے عدلیہ پر حملہ کرانے کے لیے تحریر کرایا، اسی لیے تو نواز شریف کو گاڈ فادر کہا گیا تھا۔ رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا۔
मावन खुसूसी शहबाज गिल ने तंज किया, नवाज शरीफ पहले वाला नवाज शरीफ नहीं, इनकलाबी बन चुका है, डील हो गई है। जबरदस्त मियां साहब, ये होती है वोट की इज्जत। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं, वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले डील के सहारे तलाश कर रहे हैं। नवाज शरीफ वतन वापस आए, उनकी मंजिल उनका इंतजार कर रही है। वोट को इज्जत दो की बातें करने वाले आज डील की तलाश में इधर से उधर देख रहे हैं। उनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, पासपोर्ट ख़त्म हो रहा है, वतन तो उन्होंने आना है। मुझे तो लगता है कि सेविंग ग्रेस की तलाश में, लेकिन इस तरह की बातों से वो अपने ही नारे को भी नुकसान दिया उन्होंने। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा, नवाज शरीफ चिगोयरा बनने वाले ही थे कि वीजा खत्म हो गया। नवाज जरदारी इनकलाब की बातें सिर्फ भड़कियां हैं। नवाज शरीफ वतन वापस आना चाहते हैं तो जरूर आएं, लेकिन उन्हें मुकदमात का सामना करना होगा। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी कहते हैं कि हुकूमत बलोचिस्तान की महरूमियां दूर करेंगे, बलोचिस्तान में तालीम और मवासलात के नए मंसूबे शुरू करेंगे। तहरीक इंसाफ जिन मंसूबों पर काम कर रही है वो 5 साल ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए हैं। तमाम बलूचिस्तान के हवाले से मरकज में आवाज बनूंगा। 3.25 साल गुजर चुके हैं, इंशाल्लाह ये जो बाकी रह गई हुकूमत वक्त पूरा करेगी। हम तो चाहते हैं कि वापस आए और जेल में वक्त गुजारे। वो जो बीमारी का जो बहाना करके जो गए थे और वहाँ पे बिल्कुल सेहतमंद हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनको आना चाहिए और यहाँ पर जेल में अपना वक्त गुजारना चाहिए। चोर पूरा पाकिस्तान उनको कहता है, पूरे पाकिस्तान को पता है। अदालतों ने जो है उनको चोर साबित किया हुआ है। तर्जमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं कि वोट को इज्जत देने की बातें करने वाली पार्टी अब डील की कोशिश कर रही है। राना शमीम का बयान हल्फी कहाँ तस्दीक हुआ? नोटरी पब्लिक के बयान ने सारी कहानी का खुलासा खोल कर रख दिया। देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत हसन खावर की अलहमरा में छठी अहले कल्म कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था, नवाज शरीफ वतन वापस आए तो कानून के मुताबिक उनकी अगली मंजिल होगी। हमें ऐसा मिसाक़े जमहूरियत कबूल नहीं जिसमें करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ और इक़्तिदारों की बारियां हों। वोट को इज्जत दो की बातें करने वाले आज डील की तलाश में इधर से उधर देख रहे हैं। उनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, पासपोर्ट ख़त्म हो रहा है, वतन तो उन्होंने आना है। मुझे तो लगता है कि सेविंग ग्रेस की तलाश में। हसन खावर का कहना था, केपी में आज हमारा वोट बैंक सबसे ज्यादा है। कप्तान का काम खिलाड़ियों की पोजीशन तब्दील करना होता है। इमरान खान एक ही दिन में वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन गए। इन्होंने कहा, नून लीग मुलाजिमों के अकाउंट में अरबों रुपए आने का हिसाब दे। अहले कल्म कॉन्फ्रेंस से खिताब में हसन खावर का कहना था, लिखारी मुस्तकबिल बनाते हैं। लिखारियों की किताबें बच्चों को मुस्तकबिल का शऊर देती हैं। कैमरामैन ख्वाजा फहीम के साथ आफाक हाशमी, लाहौर। 2021 में तब्दीली सरकार ने आवाम को महंगाई के सुनामी में डुबो दिया। खाने पीने, बिजली के बिलों समेत हर चीज़ में इजाफे ने आवाम की चीखें निकलवा दी। हुकूमती इदारे ने सालाना रिपोर्ट में बेतहाशा महंगाई का एतराफ़ कर लिया। गरीब के लिए सादा रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। 20 किलो आटे का थैला 200 रुपये महंगा हुआ। घी की फ़ी किलो कीमत में 142 रुपये इजाफा हुआ। बिजली 3 रुपये 40 पैसे फ़ी यूनिट महंगी हुई। घरेलू सिलेंडर 1022 रुपये महंगा हुआ। दूध 10 रुपये लीटर बढ़ गया। इदारा शुमारियात ने महंगाई की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी महंगाई से परेशान हो गए। कहते हैं कि वो चंद रोज़ कबल बीमार हुए तो अंदाज़ा हुआ कि अद्वियात कितनी महंगी हैं। अगर शेख रशीद जैसे साहिब हैसियत के लिए महंगाई है तो आम आदमी का क्या होगा? शेख रशीद ने मुल्क भर में सुई गैस की शदीद किल्लत पर आवाम की मुश्किलात का भी एतराफ़ किया। पहले मुझे ये एहसास हुआ कि दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। अगर मेरे जैसा आदमी साहिब हैसियत ये महसूस करता है कि दवाइयाँ महंगी हैं, ये अगर बात करूँगा खान साहब से। गैस की लोड शेडिंग आवाम के लिए वबाल बन गई। मेहमानों की ज़ियाफ़त तो दरकिनार, मामूल की हांडी रोटी करना भी मुश्किल हो गया। लोग हुक्मरानों से हुए सख्त नाराज़। कहते हैं कि हुक्मरान चाहे माजी के हों या फिर मौजूदा, तब्दीली सरकार आवाम के मसाइल हल करने में सभी नाकाम हुए। कराची से खैबर तक गैस लोड शेडिंग की दुहाई। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान वाले तब्दीली सरकार से नाराज। गैस बिल्कुल नहीं आती, बहुत परेशान है। बहुत मुश्किल हुई पड़ी है, ज़ाहिर है बंदा चाय नहीं बना सकता। पेशावर के शहरियों ने गैस लोड शेडिंग को जुल्म करार दे दिया। ना खाना वक्त पर मिल पाता है, वजू भी ठंडे पानी से करना पड़ता है। जहाँ गैस नहीं होगी, बिजली भी नहीं होगी,
हमें पहले से ही मार दिया इमरान खान साहब ने। हमारी हुकूमत चाहते कि गैस की सप्लाई का इंतजाम तो यकीनी बनाए। कराची और क्वेटा के अवाम भी परेशान। मेहमान जब आते तो सिलेंडर भरवाना पड़ता है, जब उनका पूरा करना पड़ता है। मेहमान को पहले ही बोल दें भाई हिसाब से आना, गैस नहीं है। वेलकम बैक नाजरीन, आपको बताएं कि सिंध हुकूमत आवाम के साथ जुल्म और सितम का सिलसिला बंद करे। सरबरा PSP मुस्तफ़ा कमाल का कराची में रैली से खिताब, कहा कि लोग पीपल्स पार्टी की वजह से अपनी कीमती ज़मीनों से महरूम हो रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची को करप्शन के लिए लगाया गया, ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। हुक्मरानों को कहता हूँ कि जुल्म मत करें, इन लोगों को हक दें, हमें सड़कें बनाने और कचरा उठाने का इख्तियार दें। ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। बताओ क्या करें, ये हमारी बात नहीं सुन रहे। ऑक्सफोर्ड की तालीम ने बिलावल भुट्टो का कुछ नहीं बिगाड़ा, ये उनसे बड़ा जागीरदार है, ये उनसे बड़ा करप्ट है, ये उनसे बड़ा सरमायादार है और सब कुछ इसकी निगरानी में हो रहा है। मजीद आपको बताएं कि महाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन आफाक अहमद ने जनूबी सिंध सूबे की तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। 1 मार्च से सिंध भर में दस्तखती मुहिम शुरू की जाएगी। 23 मार्च को सूबे के हक में रेफरेंडम होगा। रिपोर्ट कर रही हैं कामरान सुहेल। कराची में महाजिर कौमी मूवमेंट का बाग जिना में पावर शो। आफाक अहमद कहते हैं महाजिरों के मसाइल सूबे के बगैर हल नहीं होंगे। जनूबी सिंध सूबे के लिए 1 मार्च को दस्तखती मुहिम और 23 मार्च को रेफरेंडम होगा। का दरिया पार करके अपनी आने वाली नस्ल के लिए सूबा बनाकर दिखाएंगे। 23 मार्च को हम इस सूबे के हक में पूरे सिंध के शहरी इलाकों में रेफरेंडम कराएंगे बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन की मौजूदगी में। आफाक अहमद ने कहा चाहते हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफा कमाल समेत तमाम महाजिर रहनुमा एक परचम तले मुत्तहद हो जाएं। सबको याद दिलाना चाहता हूँ, मुस्तफा कमाल हो या आमिर खान साहब हो या अनीस कायम खानी साहब हो या खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हो, अरे जब पता है कि इस परचम के अंदर, जब पता है कि इस लफ्ज के अंदर बरकत है, इस लफ्ज के अंदर ताकत है, तो फिर इस परचम तले मुत्तहिद होने में कोई मुज़ायका नहीं है। आफाक अहमद ने अपने खिताब में महसूरीन मशरिक़ पाकिस्तान की वापसी, कोटा सिस्टम के खात्मे का भी मुतालबा किया। कैमरामैन जुल्फ़िकार अली के साथ कामरान सुहेल, नियो न्यूज़ कराची। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 4वीं बरसी की मरकजी तकरीब आज घड़ी खुदाबख्श भुट्टो में होगी। बिलावल भुट्टो समेत दीगर कायदीन जलसे से खिताब करेंगे। आसिफ जरदारी तबीयत नासाजी के बाद शरीक नहीं होंगे। कमरसमा कायरा, नैयर बुखारी समेत दीगर रहनुमा घड़ी खुदाबख्श पहुँच गए। जलसा गाज समेत लाड़काना में पार्टी परचम आवेज़ा किए गए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है कि इस्लामी दुनिया के पहली मुंतखब वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो एक तहरीक और मशअल राह हैं। कौम इनके कौमी जज्बे और तवील जदोजहद को कभी फरामोश नहीं करेगी। बेनज़ीर को किसने कत्ल कराया, कातिल कहाँ से आए, ये मुअम्मा आज तक हल ना हो सका। हुकूमती इदारे कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत नाकाम हो चुकी है। इमरान हुकूमत ने आवाम से झूठे वादे किए जो पूरे ना हो सके। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमरसमा कारा ने लाड़काना में गुफ्तगू के दौरान हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि इमरान खान ने हर मामले में यू टर्न का सहारा लिया। हुकूमत एक धक्के की मार है। नून लीग साथ देती तो हुकूमत ख़त्म हो चुकी होती। अपोजिशन असम्बलियों में इकट्ठी है, असम्बलियों के बाहर क्यों नहीं। हुकूमत फेल हो गई, ये बात अब तयशुदा है। सिर्फ हम नहीं कह रहे, अपोजिशन नहीं कह रही, ये तो अब आवाम भी कह रही है। अपोजिशन इकट्ठी क्यों नहीं? यकीनन अपोजिशन इस वक्त असम्बलियों में इकट्ठी है, लेकिन असम्बलियों से बाहर हम इकट्ठे थे। हमने जब PDM बनाई थी तो उस PDM के बनने के अमल के बाद हुकूमत हिल के रह गई। ये हुकूमत एक धक्के की मार है। मुस्लिम लीग हमारे साथ देती तब तक गिर गई होती। ठट्ठा में इंतजामिया की कार्रवाई, यूरिया खाद से भरे ट्रॉलर और ट्रक को तहवील में ले लिया। ट्रॉलर में 944 बोरियां सोना यूरिया खाद की मौजूद थीं, जो ब्लैक में फरोख्त के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल की जा रही थीं। पुलिस और महकमे ज़राअत के अफसरान ने दोनों गाड़ियों को तहवील में लेकर ट्रॉलर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। कोट टीजी में दिन भर थाने में टोकन के बहाने ख्वार होते, लेकिन खाद फिर भी ना मिल सकी। डीलर्स ने रात की तारीकी में खाद को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। काश्तकारों का कहना है कि इतला देने के बावजूद पुलिस हरकत में आ सकी, ना ही इंतजामिया के कानों पर कोई जूं तक रेंगी। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं गुलामुल्लाह सयाल। गुलामुल्लाह सयाल, बताइएगा ये क्या माजरा है?
देखें, गुज़िश्ता कई दिनों से जो है खाद का जो बहरान है वो शिद्दत अख्तियार कर गया है। कल जो है काश्तकारों को जो है टिकट डीलर्स की जानिब से कहा गया कि थाना पर जाएं, बोडीजी पर और टोकन हासिल करें, फिर बाद में जो है आपको जो है खाद दी जाएगी। उसके बावजूद सारा दिन जो है काश्तकार ख्वार होते रहे, लेकिन उनको कोई टोकन न मिला और ना ही कोई खाद की बोरी मिली। और रात के अंधेरे में जो है डीलर्स की जानिब से काश्तकारों को धोखा देकर जो है जो बड़े बड़े जो टावर हैं वो जो है खाद के जो है बाहर दूसरे शहरों में जो है मुंतकिल किए जा रहे हैं। जबकि काश्तकारों के मुताबिक जिला इंतजामिया समेत असिस्टेंट कमिश्नर कोडीजी मोहम्मद आसिम अब्बासी को भी इसकी इत्तला दी गई, लेकिन उसके बावजूद जो है असिस्टेंट कमिश्नर के कानों तक जू नहीं लगी और ना ही कोई कार्रवाई की गई, जिसके बाद काश्तकारों का कहना है कि मशीर बराए सिंध जो ज़राअत के मंजूर हुसैन वसान उसका नोटिस लें और डिप्टी कमिश्नर खैरपुर जो खाद का बहरान है वो जो इस पर जो है काबू पाया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। गुलाम सयाद। लोधरा का रुख करेंगे, जहां पर नवाई गांव चेक नंबर 90M के करीब डकैती की वारदात जमींदार की मुज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। पुलिस के मुताबिक डाकू की लाश शनाख्त के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। अहम खबर आपको दे रहे हैं लोधरा से, जहां पर नवाई गांव चेक नंबर 90M के करीब डकैती की वारदात जमींदार की मुज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। पुलिस के मुताबिक डाकू की लाश शनाख्त के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई थी। जाड़े ने रंग जमा दिया, कड़ाके की सर्दी, कहीं पर रिमझिम तो कहीं पर बारिश, कहीं पर बर्फबारी। मरीज सयाहों से ओवरलोडेड, हजारों सयाह फंस के रह गए। 2 रोज में 52,000 गाड़ियां मरी में दाखिल हुई हैं, जबकि सिर्फ 3500 गाड़ियों की पार्किंग की गुंजाइश है। उधर कराची में भी बादल छिलक पड़े, सर्दी बढ़ गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी आसमान से बूंदें गिरी। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग में बारिश और बर्फबारी ने सर्दी बढ़ा दी। खुशाब के असीम सपूत पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ी मोहम्मद अब्दुल्ला की अपने आबाई शहर खुशाब आमद। मदाहों ने फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया। गलियों और बाजारों में जगह जगह गुलपाशी की गई, जबकि ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए। बेटे का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल देखकर मोहम्मद अब्दुल्ला के वालिदैन के सर फख्र से बुलंद हो गए, जबकि अहले खाना की खुशी भी तेतनी थी। शहरियों का कहना है कि मोहम्मद इस्लामाबाद में जदीद टेक्नोलॉजी से लैस डायनो वैली में जानवर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं और इंसान माजी में खो जाता है। जानवरों की वादी की सैर करा रही हैं आयशा शुएब। बेओकामत किंग कॉन्ग गोरिल्ला, सूंड हिलाते हाथी, कई इकसाम के डायनासोर और फड़फड़ाती चिमगादड़ें, जिनको देखकर हर कोई माजी के जंगलों में खो जाता है। सरसब्ज पहाड़ों में घिरी डायनो वैली, जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई गई है। जानवरों की खौफनाक आवाजें सभी को माजी के इन जानवरों की याद दिलाती हैं, जिनमें से अक्सर अब नापैद हो चुके हैं। यहाँ आके ऐसा लग रहा है जैसे डायनासोर्स असल में हैं। यहाँ पे आवाज़ें जिस तरह की आ रही हैं, जिस तरह वो हिल रहे हैं, इट्स वेरी रियलिस्टिक ओवर हियर। ऑल द एनिमल्स, देयर वॉइसेस एंड साउंड्स एंड द लुक्स ऑफ देयर इज वेरी रियलिस्टिक। मुझे देख के डर लगे और मैंने बहुत एंजॉय किया है। डायनो वैली में सैर सपाटे के साथ जानवरों की धाड़ों से बच्चे और बड़े सभी डरते भी हैं, लेकिन एंजॉय भी खूब करते हैं। डायनासोर्स, हाथी और गोरिल्लास, जिनको देखकर माजी के जंगलों का गुमान होता है, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डायनो वैली में मौजूद ये तमाम जानवर हम सब की तफरी के लिए मौजूद हैं। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ आयशा शुएब, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। और इसके साथ ही नियो न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए नियो, पाकिस्तानियों की आवाज़।